Welcome to my YouTube channel, English with Neelam. Today's topic is for class 10 students. How to prepare for and how to write English board exam. Dear children, English subject आप सबके लिए बहुत important है. आप इसमें बाकी subjects की तरह से 95 plus marks आराम से score कर सकते हैं. Today I will tell you इसकी तैयारी आप कैसे करें और पेपर कैसे अटेम्प्ट करें. ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो देखिए. हर स्टूडेंट को मोटिवेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए. आई एम श्योर मेरा ये वीडियो आपको अच्छे नंबर लाने के लिए जरूर मोटिवेट करेगा. चलिए अब आते हैं हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. जैसा मैंने क्लास 12 के स्टूडेंट्स को बताया, यू मस्ट नो द कंप्लीट सिलेबस, which chapters and poems you have to prepare from your textbooks, First Flight and Footprints Without Feet. और पेपर का पैटर्न कैसा है, सेक्शन ए बी सी में कितने क्वेश्चंस आने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, आपको सब कुछ पता होना चाहिए. We all know that English paper has 3 sections. Section A is reading, where you are getting 2 comprehension passages. Section B is grammar and writing skills, जिसमें आपको ग्रामर के क्वेश्चंस और लॉन्ग कॉम्पोजिशंस करनी है. Section C is literature, where you are getting questions from both the books, that is First Flight and Footprints Without Feet. मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की टिप्स भी बताऊंगी, आप मेरे साथ बने रहिए. पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है. First of all, I talk about section A of your paper, that is unseen passages, reading section. Each passage is of 10 marks. टोटल ये आपका सेक्शन 20 नंबर का है. इसमें चिल्ड्रन आपको पैसेजेस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपने पैसेज पढ़ा, उसमें से आंसर लिया और लिख दिया. नो, कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आंसर्स लिखने हैं. यू मस्ट प्रैक्टिस द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, और केस बेस्ड जो फैक्चुअल पैसेजेस है उसकी तो आप जरूर प्रैक्टिस करिए. Children, in case-based factual passages, you will get visual inputs, means statistical data, chart, table, etc. Interpret the chart very, very carefully, or data, whatever is given to you, and try to write correct answers. Children, answer in simple language. You can score full marks in this section. Now I talk about section B of your paper, where you will get questions based on grammar and writing skills. This section is of 20 marks. In grammar, you have to attempt 10 questions out of 12. And you will get questions based on error correction, fill in the blanks, and transformation. And you have to prepare tenses, determiners, models, subject-verb agreement, and reported speech. Children, रिपोर्टेड स्पीच का वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेरी इस वीडियो का लिंक देख सकते हैं. सेक्शन बी का सेकंड पार्ट है राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं. वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज एनालिटिकल पैराग्राफ. आपको दोनों ही क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी एज पर CBSE सैंपल पेपर. दोनों क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. In formal letter, you can get letter to editor, letter to police commissioner, placing order, complaints, inquiry, or letter to any other higher authority. And for analytical paragraph, you can get a map, chart, table, cues, graphics, itinerary, etc. to interpret, to infer, to analyze, and then write a paragraph based on that. Now we come to section C, that is literature. Children, you must read all the chapters and poems very, very carefully. Here you will get a variety of questions, okay, that is MCQs and short answers as well as long answer questions based on theme, plot involving interpretation, extrapolation, and inference or character sketch. It can be a diary entry or an article. इस बार का CBSE का सैंपल पेपर आप जरूर पढ़िए और जानिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं. Children, set your target of the day, and after completing your work, means after revising the chapters, आपने जो सोचा है कि मुझे आज ये काम करना है, आप उसके बाद ही अपना दूसरा कुछ काम करने की सोचिए. और जब आप पढ़ने बैठेंगे,
Keep all your electronic gadgets, especially your mobile phone, away from you. And practice sample papers. I would suggest to practice minimum 4-5 sample papers before you go to give your final exam, board exam. And try to complete that sample paper in 3 hours only. It will teach you to manage time during the board exam. अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, दैट इज टिप्स टू राइट पेपर. आपको इंग्लिश का पेपर लिखना कैसे है. फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर्स. आपको हैंड राइटिंग का स्पेशल ध्यान रखना है. यू हैव टू राइट वेरी नीटली एंड अवॉइड कटिंग्स इन द पेपर एंड रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी वेरी केयरफुली, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट ना रहे. एंड I would advise you to follow the pattern of the question paper. सेक्शन ए पहले करिए, बी नेक्स्ट करिए और सी उसके बाद करिए. ये नहीं कि आप पहले सी कर रहे हैं. वैसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इससे आप चेकर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं अगर आप पेपर के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो. एंड आई वुड सजेस्ट यू टू यूज फर्स्ट 15 minutes that you get for reading time to solve a comprehension passage. क्योंकि आपका माइंड मॉर्निंग में बहुत फ्रेश होता है जब आप पेपर करने के लिए बैठते हैं, तो उसमें आप क्वेश्चंस अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. आप सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को ही सॉल्व करिएगा. Children, you should try to use words from your textbooks, from your chapters and from your poems while writing the answers. And you must pay attention to the format in the writing skills. You must write correct format. And you should adhere to the word limit. Read the questions carefully कि आपको आंसर्स कितने वर्ड्स में लिखना है. उतने ही वर्ड्स में लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखिएगा. And you must learn the names of the chapters and authors and poems and the poets. और चिल्ड्रन, जब आप लेटर टू एडिटर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है that I request you to solve the problem. I want to draw your attention. आप एडिटर का अटेंशन ड्रॉ नहीं करेंगे. यू विल ड्रॉ अटेंशन ऑफ द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. ये बहुत कॉमन एरर है, आप इस चीज का स्पेशल ध्यान रखिए. एंड इफ यू कंटिन्यू एन आंसर ऑन द नेक्स्ट शीट, ऑन द अदर शीट, तो आपको क्वेश्चन का नंबर दोबारा से नहीं लिखना है. इट कैन कंफ्यूज द एग्जामिनर. ये मेरे साथ भी होता है कि शायद बच्चे ने नया क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए. आपको ये गलती नहीं करनी है. And avoid making spelling errors and grammatical errors. And do not use a word if you are unsure of a spelling. आप उसकी जगह कोई और simple word use कर सकते हैं. And it's very important to draw a margin line. कई बार आंसर शीट में आपकी margin line दी होती है दोनों साइड में, कि अगर नहीं दिया है तो आप राइट हैंड साइड में अपने आप ही ड्रॉ कर लीजिएगा. And leave a line or two after every answer. इससे आपका पेपर नीट लगेगा. एंड यूज सिंपल लैंग्वेज. डू नॉट यूज टफ वर्ड्स इन द पेपर. इट इज बेटर टू यूज सिंपल लैंग्वेज देन यूजिंग टफ वर्ड्स एंड राइट रॉन्ग स्पेलिंग्स. बी कूल, रिलैक्स एंड ट्राई टू गिव योर बेस्ट. यू हैव टू मेक द एग्जामिनर योर good friend with your writing, with your presentation, with your answers. Okay? This way you have to attempt your paper. Dear children, I am sure कि आप पेपर की तैयारी अच्छे से करेंगे और बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे से लिख कर आएंगे, पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ, ताकि आप अपने स्कोर्स बहुत अच्छे ला सकें. I will be back with more videos for you all. Stay tuned. इंतज़ार कीजिए मेरी अगली वीडियो का. मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका कुछ फ़ायदा उठा सकें. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.